اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کو مشکوک خط بھیجنے کا مقدمہ دہشت گردی دفعات کے تحت درج۔ مقدمہ تھانہ سی ٹی ڈی کی ہمیں ہائی کورٹ کے بیلف قدیر احمد کی مدعیت میں درج۔ ایف آئی آر کے متن کے مطابق تحریک ناموس پاکستان کا حوالہ دے کر جسٹس سسٹم کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ دھمکی کے لیے مخصوص شکل اور انگریزی لفظ کا استعمال کیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 8 ججز کو پاؤڈر بھرے دھمکی والے مشکوک خط موصول ہوئے۔ خط ریشم اہلیہ وقار حسین نامی خاتون نے بغیر اپنا ایڈریس لکھے ہائی کورٹ ججز کو ارسال کیے۔ ایک جج کے اسٹاف نے خط کھولا تو اس میں پاؤڈر موجود تھا۔ پاؤڈر کی نوعیت جاننے کے لیے تحقیقات جاری۔ خط کے اندر ڈرانے دھمکانے والا نشان بھی موجود۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق کی خط ملنے کی تصدیق۔ کہا خط 8 ججز کو موصول ہوئے ہیں۔ بنیادی طور پر ہائی کورٹ کو تھریٹ کیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ ججز کے خط سپریم کورٹ کا 7 رکنی لارجر بینچ چیف جسٹس قاضی فائز کی سربراہی میں از خود نوٹس کیس پر آج سماعت کرے گا۔ جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس جہجہ خان آفریدی، جسٹس جمال خان مندوخیل بینچ میں شامل۔ جسٹس اطہر منہلا، جسٹس مسرت ہلالی، جسٹس نعیم اختر افغان بھی بینچ کا حصہ ہوں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے عدالتی امور میں مداخلت سے متعلق خط لکھا تھا۔ بشرا بی بی کو کھانے میں زہر دیے جانے کا الزام۔ اڈیالہ جیل میں میڈیا سے گفتگو میں کہا پہلے شہد میں بھی کچھ ملایا گیا تھا، اب کھانے میں بھی ہارپک ملایا گیا۔ شب معراج کے روز میرے کھانے میں ہارپک کے 3 قطرے ملائے گئے۔ کھانے میں ہارپک ملانے کا جیل میں بھی کسی نے بتایا۔ تحقیق سے پتہ چلا ہارپک سے 1 ماہ بعد طبیعت زیادہ خراب ہوتی ہے۔ آنکھوں میں سوجن، سینے اور معدے میں تکلیف ہے۔ جس نے کھانے میں ہارپک ڈالا اس کا نام نہیں بتاؤں گی۔ میرے امریکی ایجنٹ ہونے کی باتیں پارٹی میں پھیلائی جا رہی ہیں۔ بنی گالا میں باعزت طریقے سے رکھا گیا۔ پہلے کھڑکیاں بند رکھی جاتی تھیں، اب کچھ دیر کے لیے کھول دی جاتی ہیں۔ صحافی نے کہا زہر والے معاملے کی انکوائری ہوئی تو آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ بشرا بی بی نے کہا میں کہاں سے ثبوت لاؤں؟ بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ کی ایک مخصوص بلاگر سے علیحدگی میں بات کرنے کی خواہش کا اظہار۔ جیل انتظامیہ نے علیحدگی میں بات کروانے سے معذرت کر لی۔ بشرا بی بی کہہ رہی ہیں ہارپک کے قطرے کھانے میں ملائے، شوہر کہہ رہے ہیں زہر دیا گیا۔ صوبائی وزیر اطلاعات عظمی بخاری کا بانی پی ٹی آئی کے بیان پر رد عمل۔ کہا پہلے دونوں میاں بیوی فیصلہ کر لیں، اصل موقف کیا دینا ہے۔ بشرا بی بی نے خود تسلیم کیا بنی گالا میں ان کو بہترین سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ بشرا بی بی واحد قیدی ہیں جو اپنے ہی بیڈ روم میں قید ہیں، پھر بھی من گھڑت کہانیاں بنا رہی ہیں۔ بانی پی ٹی آئی 3 مقدمات میں سزا یافتہ مجرم ہیں، پھر بھی ان کو بکرے اور دیسی مرغیاں کھانے کو مل رہی ہیں۔ دونوں میاں بیوی جیل میں نہیں پھپھو اور خالہ کے گھر میں آئے ہیں۔ مریم نواز کو تو B کلاس کی آفر ہوئی لیکن انہوں نے کہا میں عام قیدیوں کی طرح رہنا چاہوں گی۔ نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز جن حالات میں جیلوں میں رہے آج تک شکایت نہیں کی۔ بانی پی ٹی آئی زہر دینے والی بات مت دہرائیں، آپ کو یاد ہوگا نواز شریف کے ساتھ آدھی رات کو نیب آفس میں کیا ہوا۔ ججز کا پیغام ہے وہ بے بس ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی اڈیالہ جیل میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے خط لکھا، سب کو پتہ ہے جب سے رجیم چینج ہوئی یہ بات تب سے چل رہی ہے۔ پولیس بھی کہتی ہے ہم پر دباؤ ہے۔ احتساب عدالت کے سابق جج محمد بشیر دباؤ کی وجہ سے 5 مرتبہ جیل کے ہسپتال گئے۔ عدت میں نکاح کا کیس سننے والے جج قدرت اللہ نے وکلا کو بتایا اس وقت تک بیٹے کا ولیمہ نہیں کر سکتا جب تک فیصلہ نہ سناؤں۔ سائفر کیس میں میرا 342 کا بیان ہو رہا تھا، جج 10 منٹ کے لیے باہر گئے اور واپس آتے ہی فیصلہ سنا دیا۔ عارف الوی کے ذریعے جنرل عاصم منیر کو پیغام بھیجا تھا، مجھے لندن پلان کا علم ہے۔ سینٹ انتخابات پیپلز پارٹی سینٹ میں سب سے بڑی جماعت بن کر سامنے آئی۔ سینٹ کی 19 خالی نشستوں پر ووٹ ڈالے گئے۔ سندھ کی 12، پنجاب کی 5 اور اسلام آباد کی 2 نشستوں پر ووٹنگ ہوئی۔ پیپلز پارٹی نے 11، مسلم لیگ نون نے 5، MQM 1 اور 2 آزاد امیدواروں نے کامیابی حاصل کی۔ اسلام آباد سے ٹیکنوکریٹ کی نشست پر مسلم لیگ نون کے اسحاق ڈار، پیپلز پارٹی کے رانا محمود الحسن، پنجاب اسمبلی سے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور وزیر پیٹرولیم مصدق ملک سینیٹر منتخب۔ اپوزیشن کی یاسمین راشد ہار گئی۔ سندھ سے MQM کے عامر چشتی اور آزاد امیدوار فیصل واوڈا کامیاب۔
टेक्नोक्रेट की 2 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी के सरमद अली जमीर घुमरू कामयाब। पंजाब से नून लीग के परवेज रशीद, नासिर महमूद, विफाकी वजीर बराए इक्तसादी अमूर राहत चीमा और तलाल चौधरी, हुकूमती इत्तेहाद की हिमायत याफ्ता वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के राजा नासिर अब्बास और हामिद खान एडवोकेट भी बिला मुकाबला कामयाब। साबिक निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ समेत बलोचिस्तान से सेनेट की खाली 11 नशिस्तों पर तमाम सेनेटर्स बिला मुकाबला मुंतखब। एमल वली खान और जेजुआई के अहमद खान बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब। इस साल सेनेट की 48 नशिस्तें खाली हुई, जिनमें से 18 पर सेनेटर्स बिला मुकाबला मुंतखब हुए। बलोचिस्तान असम्बली से 11, पंजाब में 7 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात ताहुक्म सानी मुलतवी। इलेक्शन कमीशन का तहरीरी हुक्मनामा जारी। कमीशन के मुताबिक सूबाई असम्बली में 25 अरकान की दरख्वास्त पर इलेक्शन मुलतवी किया गया, जिनसे हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद हल्फ नहीं लिया गया। नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। अपोजिशन अरकान ने सेनेट इंतखाबात मुलतवी करने के लिए दरख्वास्त जमा कराई थी। अहमद करीम कुंडी ने सूबाई इलेक्शन कमिश्नर के पास जमा कराई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया था, हमारे 25 अरकान से अभी तक हल्फ नहीं लिया गया, इलेक्शन मुलतवी किया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात के इल्तवा से मुतल्लिक कानूनी पोजीशन को देखना चाहिए। वजीर इत्तलात अता तारक ने कहा, इस मामले पर एक दरख्वास्त आई थी जिस पर एक फैसला आया। जो भी कानूनी पोजीशन बनती है वो लाएअमल इख्तियार करेंगे। अपोजिशन ने कानून की बुनियाद पर दरख्वास्त दी। निजकारी के मामले पर पीपल्स पार्टी के साथ कोई इख्तिलाफ नहीं। निजकारी पर खुश असलूबी से तेजी से मामलात आगे बढ़ रहे हैं। मुकर्ररा मुद्दत में निजकारी का अमल मुकम्मल होगा। आइन को तोड़ा जा रहा है। हमारी सीटें, हमारी रिजर्व सीटें हमें नहीं दी गई। आज गैर कानूनी केसेस के अंदर हमारा लीडर इमरान खान जेल में है। जिस तरीके से वो ट्रायल हुए, जितनी जल्दी में हुए और जो फैसले हुए वो भी कौम के सामने, और इंशाल्लाह ये सारा सिस्टम एक्सपोज होगा एक दिन। इलेक्शन कमीशन ने आइन तोड़कर सेनेट इलेक्शन मौखर किया। अली अमीन गंडापुर ने कहा, खुद को जमहूरी कहने वाले पराई सीटों पर बैठना चाहते हैं। किसी भी सूरत में जेल जाली रिजर्व सीट पर हल्फ नहीं होने देंगे। इलेक्शन कमीशन ने किस बुनियाद पर सेनेट इंतखाबात को मुआखर किया? पार्लिमानी पार्टी इजलास में कुछ करारदादें पास की, इजलास असम्बली से भी मंजूर कराएंगे। मई का फायदा किसको हुआ और नुकसान किसको हुआ? 9 मई लंदन प्लान का हिस्सा है। सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं दिखाई जा रही? निजाम को दिन ब दिन एक्सपोज करेंगे। जुडिशल कमीशन बनाएं, सबसे पहले मुझसे तहकीकात शुरू करें। बताया जाए गेट किसने खोला, किसने जलाया, फुटेज क्यों गायब की? जमान पार्क में वस्तायत के बावजूद बानी पीटीआई को गिरफ्तार किया गया। जजेस का खत सबूत है कि हमारे खिलाफ फैसले प्रेशर में किए गए। फुल बेंच बनाना चाहिए और मीडिया पर कार्रवाई नशर की जाए। अपोजिशन का हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला। कोई भी फैसला पार्लियामेंट की मंशा के बगैर कबूल होगा, ना किसी को करने दिया जाएगा। MWM की मेजबानी में इस्लामाबाद में होने वाले मुशावरती इजलास का एलामिया जारी। PTI, PK मैप, BNP, JI, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रहनुमाओं की शिरकत। सदारती निजाम राइज करने के इरादे रद्द। पार्लियामेंट की बालादस्ती पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी, ना समझौता किया जाएगा। सियासत में हर किस्म की मुदाखलत को फौरी बंद किया जाए। तमाम इदारे आइन के मुताबिक अपनी हदूद की पाबंदी करें। शफाफ इंतखाबात यकीनी बनाने के लिए इंतखाबी इस्लाहात की जाएं। इजलास में आइन व कानून की अमलदारी, अदलिया की आज़ादी पर इत्तेफाक। इजलास में बानी PTI समेत तमाम सियासी रहनुमा की कैद और जाली मुकदमात की मजम्मत। इजलास में शरीक जमातों का तमाम सियासी कैदियों की फौरी रिहाई का मुतालबा। मखसूस नशिस्तों पर हल्फ न लेने पर स्पीकर, डिप्टी स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर। मुंतखब अरकान की जानिब से पेशावर हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि अरकान असम्बली को सेनेट इंतखाबात में वोट का हक नहीं दिया गया। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ने अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की। इन दोनों को तौहीन अदालत पर नाअहल करार दिया जाए। सेनेट इंतखाबात को मखसूस नशिस्तों के हल्फ से मशरूत करने का केस। इलेक्शन कमीशन फरीकैन से जवाब तलब। पेशावर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आजम सवाती की दरख्वास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी किया।
बानी पीटीआई की अडयाला जेल में मुलाकात के लिए नए फोकल पर्सन्स की मंजूरी। शेर अफजल मरवत और बैरिस्टर उमैर न्याजी का नाम मुलाकातियों के लिए मुकर्रर फोकल पर्सन की फहरिस्त खारिज। सेनेटर शिबली फराज, बैरिस्टर गोहर और उमर अजूब फोकल पर्सन्स मुकर्रर। लाहौर के तारीखी वाल्टन एयरपोर्ट की जमीन की फरोख्त में मुबज्जना करप्शन। वाल्टन एयरपोर्ट की जमीन 50 अरब रुपए सस्ती बिकने का इंकिशाफ। पाकिस्तान एयरक्राफ्ट ओनर्स एंड ऑपरेटर्स एसोसिएशन का वजीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ को खत। अरबों रुपए की मुबज्जना करप्शन पर तहकीकात का मुतालबा। मुरासले में लिखा, वाल्टन एयरपोर्ट की 350 अरब रुपए की अराजी कम दामों पर सिविल एविएशन अथॉरिटी ने बेची। मुरीद के में सस्ती जमीन खरीद कर CAA को बड़ा नुकसान दिया गया। सिविल एविएशन अथॉरिटी के अकाउंट में सिर्फ 1 अरब रुपए आए, बाकी रकम की तहकीकात कराई जाएं। सिविल एविएशन अथॉरिटी की वजाहत। बयान में कहा, पाकिस्तान एयरक्राफ्ट ओनर्स एसोसिएशन का वजीर हवाबाजी को खत। सिविल एविएशन क़यादत को बदनाम करने की कोशिश है। वफाकी और पंजाब हुकूमतों ने मुश्तरका तौर पर मंसूबे की मंजूरी दी। वाल्टन एरोड्रोम के आसपास बड़े तिजारती और रिहायशी इलाकों के लिए खतरा थी। पीटीआई का खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात मुलतवी करने का फैसला। अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। बैरिस्टर गोहर ने कहा, पेशावर हाई कोर्ट से रिजू करेंगे। आर्टिकल 51 के तहत किसी पार्टी को जीती हुई सीटों से ज्यादा नहीं दे सकते। केपी असम्बली में अपोजिशन की 17 नशिस्तें हैं, जिन पर वो 30 सीटें मांग रहे हैं जो इनकी नहीं है। पार्टी नुमाइंदगी के जारी करदा फॉर्म्स में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल रजिस्टर्ड है। उसके बावजूद स्पीकर का हमें आजाद कहना मुनासिब नहीं। सुप्रीम कोर्ट में पटिशन फाइल कर दी है। अलकादे ट्रस्ट केस भी तोशाखाना की तरह बेबुनियाद है। बानी पीटीआई की नाअहली का केस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तिवा है। बुशरा बीबी के हवाले से खदशात हैं। बुशरा बीबी को स्लो पॉइजनिंग दी जा रही है। पार्टी के अंदर इख्तलाफात हमारा अंदरूनी मामला है, इसको हल करेंगे। हमारी जो बहनें जेलों में हैं उनको फौरी रिहा किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा में ना जाने कौन से कवानीन राइज हैं। इलेक्शन कमीशन ने आइन के तहत सेनेट इलेक्शन मुलतवी किए। वफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मकाम की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सूबे में आइन और कानून की खिलाफ वर्जी की जा रही है। ये वही फैसले मानते हैं जो इन्हें सूट करते हैं। पीटीआई का असल चेहरा आवाम के सामने आ गया। सरदार यूसुफ बोले, पीटीआई के रवैये से आइन को नुकसान पहुंचने का खदशा है। जेल में बैठा एक शख्स पीटीआई अरकान से आइन शिकनी करा रहा है। पीटीआई के हिमायत याफ्ता उमर अजूब कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर मुकर्रर। स्पीकर अयाज सादिक ने उमर अजूब को अपोजिशन लीडर डिक्लेयर कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। उमर अजूब की स्पीकर से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के फॉर्म पर सबके दस्तखत हैं। बहुत से लोग मुंतखब हुए, पहले हमसे निशान छीना गया, जिसकी शदीद मजम्मत करते हैं। कौम बानी पीटीआई के साथ खड़ी है। हमारे पास फॉर्म 45 की बिना पर 180 सीटें हैं। चाहते हैं जजेस खत अज खुद नोटिस की समात 7 रुकनी बेंच नहीं फुल कोर्ट करे। जो लोग आज बोल रहे हैं वो उस वक्त कहां थे जब नवाज शरीफ पर पहाड़ टूटे। ख्वाजा आसिफ ने कहा, जब शौकत सिद्दीकी को बलि चढ़ाया गया उस वक्त जज साहिबान और इन लोगों का जमीर कहां था। जिन लोगों के पास ताकत होती है उनको इज्जत आबरू का पास रखना चाहिए। मुल्क में बिजली गैस चोरी हो रही है, आम आदमी की जिंदगी मुतासिर है। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट से पार्टी पोजीशन जारी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान आजाद करार। ऐवान में सुन्नी इत्तेहाद के 88 आजाद अरकान। हुकूमती इत्तेहाद के मेंबरान की तादाद 226। कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून के 122 अरकान, पीपल्स पार्टी के 70 और MQM के 22 अरकान असम्बली हैं। मुस्लिम लीग काफ के 5, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के 4, जमीयत उलमाए इस्लाम के 11 अरकान असम्बली हैं। जो जितना ज्यादा झूठ बोलेगा उतना ही सोशल मीडिया पर बिकेगा। सहाफियों को FIA नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त पर समात में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया रेगुलेशन वाली पिटीशन के दरख्वास्त गुजारों को जाती हैसियत में तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, आपकी इन लोगों से आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट तो नहीं हो गई। बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कहा, हम सहाफी हैं, ऐसी सेटलमेंट के वसाइल नहीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जरूरी नहीं पैसे ही हों, ये भी हो सकता है कहा गया हो आइंदा मेरी खबर अच्छी छाप देना। जस्टिस फायज ईसा ने अटॉर्नी जनरल को मुंतखब करते हुए कहा, अगर मैं एक केस को ओपन एंड शट कहूं तो वो मतियुल्लाह जान केस का है। आपके पास इस वाक़े की वीडियो है, अगर कुछ नहीं करते तो ऐसा ऑर्डर आएगा जो आपको पसंद नहीं आएगा।
रवा माली साल पाकिस्तान की तरक्की की शरह 1.8% रहने का इम्कान। आलमी बैंक की पाकिस्तान मैक्रो इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी। NHAPIA स्टील मिल के नुकसानात कम करने के अलावा एनर्जी सेक्टर समेत सरकारी इदारों में मुश्किल इस्लाहात पर नागुज़ीर। पाकिस्तान में महंगाई में कमी का इन्हिसार पायदार माली इस्तेहकाम पर है। मुख्तलिफ शोबों को सब्सिडीज, ग्रांट्स, कर्जे मईशत को मुतासिर कर रहे हैं। हुकूमत के माली खसारे में 18% हिस्सा सरकारी इदारों का है। साल 2022 में सरकारी इदारों पर 1303 अरब रुपए के अखराजात आए। वजारतें खलीजी ममालिक से मुतल्लिका मुफाहमती याददाश्तों पर रवाबित में बेहतरी लाएं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत बैरूनी सरमायाकारी से मुतल्लिक जायजा इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा, चैलेंजेस को मौक़े में बदलने के लिए गैर मुल्की सरमायाकारी का फ़रोग़ तरजीह है। सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाएगी। गवादर पोर्ट पर अब बड़े बहरी जहाज लंगर अंदाज हो सकते हैं। इजलास को ब्रीफिंग में कहा, खलीजी ममालिक से तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में कसीर सरमायाकारी मुतवक्के है। सरमायाकारी के मंसूबों के मयार पर समझौता ना किया जाए। वज़ीर आज़म की हिदायत। खलीजी ममालिक से मुआहदों और मुफाहमती याददाश्तों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। वज़ीर तवानाई सरदार अवैस अहमद लगारी और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की वीडियो लिंक के जरिए बातचीत। वफाकी और पंजाब हुकूमतों के दरमियान बिजली चोरी के खात्मे के लिए ताउन पर तबादला ख्याल। सूबे भर में बिजली चोरी की रोकथाम और वसूलियों में बेहतरी की मुहिम को तेज करने में इत्तेफाक। दोनों रहनुमा मजिस्ट्रेट, पुलिस एहलकारों, इंटेलिजेंस अफसरान और प्रोसिक्यूशन के माहिरीन पर मुश्तमिल ज़िलई टास्क फोर्स के क़याम मुत्तफ़िक। टास्क फोर्स को बिजली चोरी के बढ़ते हुए मसले से निमटने के लिए फैसला कुन इक़दामात करने का काम सौंपा जाएगा। इंसदादे बिजली मुहिम में आला कारकर्दगी वाले अफसरान को इनामात से नवाजा जाएगा। कराची में अमनो अमान की सूरत हाल तसल्ली बख्श नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का एतराफ़। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अमनो अमान की सूरत हाल पहले भी अच्छी नहीं थी, ताहम जनवरी और फरवरी में क्राइम बढ़ा है। इक़दामात किए जा रहे हैं, इंशाअल्लाह जल्द इस पर काबू पा लेंगे। गवर्नर से 4 दिन पहले मुलाकात हुई थी। अमनो अमान के हवाले से उनके कोई खदशात नहीं थे। कराची में बदअमनी इंतहा को है। इतने कत्ल किसी और जगह होते तो ऑपरेशन का मुतालबा किया जाता। पीपल्स पार्टी की हुकूमत को सूबे में बदअमनी की लापरवाही नहीं करनी चाहिए। रहनुमा MQM फैसल सब्जवारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सूबाई वजीर दाखिला मामले को संजीदा नहीं ले रहे, वो वजीर मजाकियात बन चुके। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, पाकिस्तान में अदलिया और निज़ाम इंसाफ का बेहतर होना बहुत जरूरी है। इसमें से बहुत सी खैर निकल सकती है। कराची गुलशन हदीद फेज 2 में 20 लाख की डकैती। 2 मोटरसाइकिल साइकिलों पर सवार 4 मुसल्लह मुल्जिमान कार सवार शहरी से कैश छीन कर फरार। बहावल नगर इस्लामिया यूनिवर्सिटी की तालिबा से मुबैना तौर पर अगवा के बाद ज्यादती। मुतासिरा तालिबा के मुताबिक रिक्शा ड्राइवर ने कैंपस से घर छोड़ने की बजाय साथी मुल्जिमान की मदद से अगवा किया। नामालूम मकाम पर कैद करके मुतअद्दिद बार ज्यादती का निशाना बनाया। पुलिस के मुताबिक तालिबा की वीडियोज और तस्वीर बनाकर मुल्जिम ने तालिबा को ब्लैकमेल भी किया। मुतासिरा तालिबा की दरख्वास्त पर मुल्जिमान के खिलाफ FIR दर्ज। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का तालिबा के अगवा का नोटिस। IG पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, ऐसे अफराद किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। हबीब बैंक लिमिटेड का ओवरसीज पाकिस्तानियों से फ्रॉड। जालसाजी से अकाउंट होल्डर के दस्तखत करके पैसे निकलवा लिए। कर्ज की फाइलें भी मंजूर करा ली। अफसरान की जानिब से मुबैना तौर पर 5 करोड़ 50 लाख से जायद की खुर्द बुर्द का इंकशाफ। एहतसाब ब्यूरो आज़ाद कश्मीर ने शिकायत पर मुलव्विस अफसरान के खिलाफ फर्द जुर्मायत कर दी। बैंक हुकाम ने चुप साध ली। स्टेट बैंक और वजारत खजाना हबीब बैंक की लूट मार पर तमाशाई बन गए। तालीम का शोबा NGOs के रहमो करम पर वजारत तालीम भी तालीम के नाम पर डांस पार्टियों का हिस्सा बन गई। विफाकी निजामत तालीमात को गैर सरकारी तंजीम यूनेस्को के कहने पर डांस मुकाबले करवाने का नोटिफिकेशन जारी। 25 मई को अफ्रीका डे पर एजुकेशन डांस रिलीज करने का ऐलान। नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम तालीमी इदारे बच्चियों और बच्चों से डांस परफॉर्म करवाएं और उनकी वीडियो शेयर करें।
مذہبی اسکالر مولانا راغب نعیمی کی سرکاری سطح پر تعلیمی اداروں میں ڈانس پارٹیوں کی ہدایت کی مذمت ناجائز اور بڑا المیہ قرار دے دیا. کہتے ہیں معاملے پر اسلامی نظریاتی کونسل سے رجوع کریں گے. حکومت نے ذمہ داران کو کیفر کردار تک نہ پہنچ